ناظرین آداب، منصف ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں JKL ڈائری۔ میں ہوں آپ کا میزبان عمران علی بیگ۔ سب سے پہلے سرخیوں پر ایک نظر۔ پونچھ حملے کے بعد حساس اضلاع میں سیکیورٹی انتہائی سخت، جامع تلاشی اور CCTV کیمروں کے ذریعے آنے جانے والوں پر نظر۔ انسداد دہشت گردی معاملے میں NIA نے جموں کشمیر حزب المجاہدین کے سربراہ سید صلاح الدین کے بیٹے شکیل احمد کی پراپرٹی اٹیچ کی۔ اور جموں کشمیر کے تحت ضلع کے 11 بلاکوں میں جانکاری پروگرام کا انعقاد۔ پروگرام میں کی وائس چیئرمین BDC پلوامہ سرور حسین نے شرکت۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پونچھ حملے کے بعد جموں کشمیر کے قرب و جوار بالخصوص حساس اضلاع میں سیکیورٹی بندوبست کو مزید سخت کر دیا گیا ہے۔ شہر میں جہاں ناکوں کے جال میں مزید توسیع کی گئی ہے، وہیں حساس مقامات پر سیکیورٹی کی نفری میں بھی اضافہ کیا گیا ہے اور انہیں مزید چوکنا بھی کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق جموں شہر سمیت صوبے کے باقی اضلاع میں سیکیورٹی بندوبست کو مزید سخت کر دیا گیا ہے۔ بعض مقامات پر سیکیورٹی فورسز اہلکار سکوٹر سواروں کو روک کر ان کے بیگوں کی تلاشی لے رہے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز اہلکار مشکوک نظر آنے والے راہگیروں کو بھی روک کر ان کی جامع تلاشی اور ان کے شناختی کارڈ چیک کرنے کے بعد انہیں جانے کی اجازت دے رہے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ جموں شہر میں CCTV کیمروں کے ذریعے لوگوں پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ انسداد دہشت گردی معاملے میں قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA نے آج جموں کشمیر میں حزب المجاہدین کے سربراہ سید صلاح الدین کے بیٹے شکیل احمد کی پراپرٹی کو اٹیچ کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق NIA نے آج سری نگر کے رام باغ علاقے میں حزب المجاہدین کے چیف سید صلاح الدین کے فرزند شکیل احمد کی رام باغ سری نگر میں واقع پراپرٹی مکان کو انسداد عسکریت کے معاملے میں سیل کر دیا۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی کی ایک ٹیم نے آج شکیل احمد ولد محمد یوسف سید صلاح الدین چیف کمانڈر حزب المجاہدین کی پراپرٹی واقع رام باغ سری نگر کو منسلک کر دی۔ NIA نے اس دوران 3 منزلہ عمارت کے باہر ایک بورڈ لگایا ہے جس پر پورے کیس کی تفصیلات درج ہیں۔ ان جائیداد کو غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام ایکٹ سن 1967 کی ذیلی دفعہ 33(1) کے تحت NIA کی ایک خصوصی عدالت نے منسلک کیا ہے۔ وادی کشمیر کے کسانوں کی آمدنی میں اضافہ اور سرکاری اسکیموں کے حوالے سے جانکاری دینے کی غرض سے آج ضلع پلوامہ کے 11 بلاکوں میں کسان سمپرک ابھیان جموں کشمیر پروگرام کے تحت کسانوں کے لیے جانکاری پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں ضلع کے افسران نے شرکت کی جبکہ کسانوں کی ایک بڑی تعداد نے بھی پروگرام میں شرکت کی۔ جموں کشمیر انتظامیہ نے محکمہ زراعت، باغبانی اور دیگر زراعت شعبے سے وابستہ محکموں کی جانب سے چلائی جانے والی اسکیموں کے بارے میں کسانوں کو جانکاری فراہم کرنے کے لیے اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا تھا۔ پروگرام کے دوران متعلقہ محکموں کی جانب سے چلائی جانے والی اسکیموں کی جانکاری ایک ویڈیو کے ذریعے بھی دی گئی جس سے کسانوں کو مستفید ہونے کی اپیل کی گئی۔ پروگرام کا انعقاد ضلع کے مختلف پنچایت گھروں میں کیا گیا تھا جس میں ان علاقوں کے پنچوں اور سرپنچوں نے بھی شرکت کی۔ یہ پروگرام دیہی معیشت کو تبدیل کرنے اور کسانوں کی آمدنی کو 2 گنا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس ضمن میں وائس چیئرمین BDC پلوامہ سرور حسین نے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے پروگرام سے کسانوں کو کافی فائدہ ہوگا، ساتھ ہی ان کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس پروگرام کے دوران کسانوں کو محکمہ زراعت کی جانب سے چلائی جانے والی اسکیموں کے بارے میں جانکاری دی گئی جبکہ کسان کو ان اسکیموں سے مستفید ہونا چاہیے۔ گورنمنٹ نے ایک اچھا انیشیٹو لیا ہے کہ گاؤں یا دیہات ہو، ہر ایک جو گورنمنٹ کی اسکیم ہے وہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ یہ اویئرنیس پروگرام ہے ہارٹی کلچر، ایگریکلچر، سیریکلچر کہ لوگوں تک یہ جو گورنمنٹ نے اسکیمیں لانچ کی ہے کہ وہ ہر ایک فرد تک پہنچ جائے۔ اسی معاملے میں یہ آلریڈی یہاں اویئرنیس پروگرام تھا کہ ہر ایک جو فرد ہے اس اسکیموں کا فائدہ اٹھائے۔ اوورآل تو جیسے کہ میں دیکھ رہا ہوں گراس روٹ لیول پہ کہ
हर कोई लोग तो इन स्कीमों का फ़ायदा ले, लेकिन बीच बीच में अभी भी कुछ लोग ऐसे कि जिनके पास इन स्कीमों का फ़ायदा नहीं है। क्या अब हमने ये यहाँ से प्रोग्राम किया है कि हम डोर टू डोर जाएंगे, लोगों को अवेयरनेस करेंगे कि वादी कश्मीर के किसानों की आमदनी में इजाफा और सरकारी स्कीमों के हवाले से जानकारी देने की गर्ज से आज ज़िले पुलवामा के 11 ब्लॉकों में किसान संपर्क अभियान जम्मू कश्मीर प्रोग्राम के तहत किसानों की जानकारी के लिए शुरू किया गया, जिसमें ज़िले के अफसरान ने शिरकत की, जबकि किसानों की एक बड़ी तादाद ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की और मुस्तफ़िद हुए। पेश एक तफसील। संपर्क अभियान के तहत मजमूई ज़राअत की तरक्की के प्रोग्राम को ज़िले गांदरबल में आज शुरू किया गया, जिसके तहत डिप्टी कमिश्नर गांदरबल श्यामबीर ने पंचाई घर थेरू का दौरा किया, जहां उन्होंने 3 दिन के तरबियती प्रोग्राम शुरू किए। इस वाकफियत और जानकारी प्रोग्राम में आला अफसरान, एनिमल हस्बेंड्री के अफसरान और किसानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। किसान संपर्क अभियान को आज जिले के 4 ब्लॉक्स में ब्लॉक गांदरबल, ब्लॉक लुर, ब्लॉक कांगान और ब्लॉक गौंड समेत शुरू किया गया। ये प्रोग्राम 30 अगस्त तक जारी रहेगा, जिसके दौरान तमाम ब्लॉक्स के तमाम पंचायत ब्लॉक्स का अहाता किया जाएगा। इस मौके पर डीसी ने किसान संपर्क अभियान की हैंडबुक भी शुरू की। इसके अलावा स्कीम के तहत मंजूर शुदा मंसूबों पर वीडियोस भी चलाई गई। इस मौके पर खिताब करते हुए डीसी ने इस स्कीम के मकसद पर रोशनी डालते हुए कहा कि एक छत के नीचे ज़राअत के शोबे की तरक्की से मुतालिक तमाम सहूलियात की फराहमी के लिए स्कीम शुरू की गई है, ताकि ज़राअत के शोबे की मजमूई तरक्की को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने PRIS और काश्तकारों खुसूसन नौजवानों से अपील की कि वो आगे आएँ और ख़ुद को रजिस्टर करवाएं, ताकि इस स्कीम का फ़ायदा उन्हें मिल सके और ज़िले में ज़राअत की पैदावार और सलाहियत को फ़रोग़ देने के लिए वो अपना किरदार अदा कर सकें, ताकि काश्तकारी कम्युनिटी की मईशत को बढ़ाया जा सके। ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर टोटल 5,000 करोड़ के आसपास पैसा हमको सरकार देने वाली है। नहीं होगा, कटाई के लिए दे दिया तो फिर मार्केटिंग नहीं होगी, मार्केटिंग के लिए दे दिया तो फिर आपको उसका दोबारा अगली बार कैसे होगा। तो ये चाहता हूँ कि गांदरबल जिले के लोग सबसे पहले आगे आए और इस पूरी जो स्कीम बनाई गई है उसका फायदा लें, है ना। और यहाँ पर बहुत अच्छा विकास अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो आने वाले 2-3 साल के बाद ही हम लोग यहाँ पर एक पेन ड्राइव से वीडियो भी दे देंगे आप, ठीक है। लेकिन ये प्रोग्राम आप बेरोजगार तो उसको भी लेके आए, उसको भी बोला कि अच्छा चलो तुम भी आ जाओ यहाँ पर देखो, तो वो भी अपने हिसाब से आपकी हैंड होल्डिंग करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए आपको आगे आना पड़ेगा। मुंसिफ टीवी के लिए गांदरबल से राजा सैयद की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY के चौथे मरहले का आगाज़ मरकज़ के ज़ेर एहतमाम जम्मू कश्मीर के 3,565 पंचायतों में आज से शुरू हुआ। किसानों को नई मंजूर शुदा और मरकज़ की जानिब से स्पॉन्सर्ड शुदा स्कीमों के तहत होने वाले फ़वाइद के बारे में आगाह करने के मकसद के साथ महकमे ज़राअत ने आज शोपियां ज़िले के किसानों के लिए किसान संपर्क अभियान के नाम से एक तौसीई वाकफियत प्रोग्राम शुरू किया, जो ज़िले के तमाम ब्लॉक्स में मुख्तलिफ पंचायतों में किया गया। पंचायत हल्का पहनों में मरकज़ी तकरीब मुनक़्क़िद हुई, जहाँ DDC चेयरपर्सन बिल्किस जान, DDC मेंबर अब्दुल हमीद शेख, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर यार अली खान और चीफ हार्टिकल्चर अफसर शोपियां मोहम्मद रमज़ान वार के अलावा दीगर ज़िलई अफसरान की मौजूदगी में ओरिएंटेशन प्रोग्राम का इफ्तिताह किया गया। हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गवर्नर किसान संपर्क अभियान दीक्ष किसान और किसान साथ का आगाज़ किया। मनोज सिन्हा ने 3 अहम स्कीमों के तहत ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबों की हमागीर तरक्की के मंसूबों की मौसर अमल आवरी शुरू कर दी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 4 माह तवील किसान संपर्क अभियान में किसानों की वाकफियत के लिए तमाम इक़दामात और हुनरमंदी के कोर्सों पर तवज्जो मरकूज़ करने का अहद किया। इस दौरान इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि पेचीदा मंसूबा किसानों तक पहुँचे और किसानों को नए चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए तैयार किया जा सके। होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोग्राम के तहत आज महकमे ज़राअत की तरफ से किसान संपर्क अभियान स्कीम का इफ्तिताह किया गया। तकरीबात के हवाले से आज ज़िले अनंतनाग के आकुरा पंचायत में भी बाज़ाब्ता तौर पर इसकी शुरुआत की गई। इस हवाले से 3 महीने तक मुख्तलिफ मकामात पर किसानों को तरबियती प्रोग्राम के ज़रिए किसान से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ किस्म की जानकारी फराहम की गई और सैकड़ों किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड भी फराहम किया गया। है एक किसान संपर्क अभियान है, उसमें हम
फार्मर्स को ओरिएंटेशन देंगे रिगार्डिंग होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स, जिसमें 29 प्रोजेक्ट्स है और 15 जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है। टोटल मिला के 45 स्कीम्स है जहां से जमींदार फायदा उठा सकते हैं। जहां होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात है, उसमें जो प्रोजेक्ट्स है उसमें जो जमींदारों के इश्यूज थे, चाहे एग्रीकल्चर के या एग्रीकल्चर के अलाइड सेक्टर्स के साथ जो इनके जो इश्यूज थे उनको एड्रेस किया जा चुका था। दूसरा इस प्रोग्राम का मकसद है किसान दीक्षा, यानी कि जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ्स है गाँव में, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके पास जमींदार घरों से ताल्लुक रखते हैं, उनको हम आज अनरोल करने जा रहे हैं ताकि हम नॉमिनेट करें उन्हें किसी स्किल डेवलपमेंट कोर्स के लिए, और आगे आने वाले दिनों में वो एज एग्रीकल्चर एंड शहीद शेख अब्दुल जब्बार फाउंडेशन ने 30 अप्रैल सन 2023 को कमरिया स्टेडियम में शेख अब्दुल जब्बार साबिक MLC काबीना के वज़ीर की 34वीं सालगिरह के मौके पर ताकत का मुजाहरा करने का मंसूबा बनाया है। शेख अब्दुल जब्बार के बेटे सीनियर सियासी रहनुमा और साबिक MLA शेख अशफाक जब्बार ने एक बड़े प्रोग्राम की बात कही है। इस तकरीब की एक ऐसे वक्त में सियासी अहमियत बढ़ गई है जब शेख अशफाक जब्बार अपनी पार्टी की कौमी कॉन्फ्रेंस के साथ तल्ख तनाज़े में मुलविस है। शहीद मिल्लत शेख जब्बार साहब का 34वां यौम वफ़ात उनका एक फातह खानी होगी, जिस सिलसिले में हमें प्रोग्राम की आज हाथमी शक्ल देनी थी। उस सिलसिले में अपने साथियों से बात की, तो मेरी आपकी चैनल से भी गुजारिश होगी तमाम आवाम से कि वो हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े और इस प्रोग्राम में उस शहीद को खराज अकीदत करेंगे जिसने बहुत बड़ा एक कुर्बानी दी है गांदरबल के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, खुसूसन गांदरबल का एक देन है गांदरबल को। और साथ साथ जो भी बाकी बातें भी हुई वो उस सिलसिले में भी गौर खोस हुआ। ये एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम जो आज अब ईद का इस सिलसिला चल रहा है, तो लोग इसको अपना सारा काम काज छोड़ के यहाँ आ गए, तो ये बहुत बड़ी बात है। इससे अक्कासी है कि शहीद मिल्लत के साथ कितना प्यार है लोगों का आज भी, और उस मिशन के साथ बराबर जुड़े हैं लोग जिसको उन्होंने हमारे लिए पीछे छोड़ा। इंशाल्लाह उस लेगेसी को हम आगे बढ़ाएंगे। जो एक गरीब परवर लीडर थे जिन्होंने हमेशा लोगों के लिए बात की है, हम उसको आगे बढ़ाएंगे और इंशाल्लाह जहाँ भी रहेंगे। ज़िले पुलवामा के सर्किल रोड पर इंतज़ामिया ने जगह जगह पर कूड़ा करकट डाल रखा है, जिसकी वजह से आम लोगों, कारोबारियों, स्कूली बच्चों के साथ साथ इस रोड से गुजरने वाले लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ताहम इंतज़ामिया से कूड़ा करकट को किसी दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए कोई संजीदा इक़दाम नहीं उठा रहा है। दूसरी जानिब ज़िले में आवारा कुत्तों की तादाद में भी इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से लोग तशवीश में मुब्तला हैं। मरकज़ी हुकूमत मुल्क में साफ़ सफाई की क्लीन इंडिया मुहिम, स्वच्छ भारत वगैरह जैसे बड़े प्रोग्राम्स चला रही है, जिस पर करोड़ों रुपए सर्फ किए जाते हैं। इन प्रोग्राम्स का मकसद मुल्क को गंदगी से पाक रखना है। वहीं मुल्क के साथ साथ वादिये भर में भी इन प्रोग्राम के हवाले से सफाई मुहिम का काम अंजाम दिया जाता है। ताहम जब हम वादी के तूल व अर्ज़ में इन प्रोग्राम्स के हवाले से नज़र दौड़ाते हैं तो ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और नज़र आते हैं। कस्बा जात में जगह जगह गंदगी के ढेर नज़र आते हैं, जिसकी वजह से लोगों को बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बीमारियों के फैलने का भी खतरा लाहक हुआ है। मुकामी बाशिंदे मुदस्सिर अहमद ने बात करते हुए कहा कि अगर हमें वादी कश्मीर की खूबसूरती को बरकरार रखना है तो इसके लिए इंतज़ामिया के साथ साथ अवामी सतह पर भी संजीदा इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। त्रो गवर्नमेंटन ोट गुजारिश करान अगर ये बंद गया कुन तरीक हून गई ज्यादा विहड़ बागस मं बना वसन वाड़न मं बना जनान नफरस गसन बत खिन मे कारखान वलिस अकिस पे गर वनकस गसन यह गन बंद यपर कॉलेज मोमिनस कॉलेज अत कोड़न पे सत पकुन स्कूटर वालन एक्सीडेंट गसान यम मुश्किलात गई। इस ज़िमन में मुकामी बाशिंदे गुलाम हसन ने बात करते हुए कहा कि सर्किल रोड पर कूड़ा करकट डाला जा रहा है, जिसकी वजह से अवाम के साथ साथ कारोबारियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इससे आवारा कुत्तों की तादाद में इजाफा हुआ है, जिससे आम लोगों का चलना फिरना दुश्वार हो गया है और काफ़ी मुश्किलात पेश आती है। यहाँ दुकानदार हूँ, यहाँ चलने फिरने की हमें बहुत दिक्कत होती है।
यहाँ बहुत बदबू आती है, यहाँ दुश्वार होता है। दुकान पर बैठते हैं तो दुकान पर भी नहीं, हम बैठ नहीं पाते हैं कि ये जो आवारा कुत्ते हैं इनकी तादाद भी बढ़ते हैं। हमें यहाँ चलना बहुत दुश्वार होता है और कुत्ते भी कभी कभी बच्चों को पीछे दौड़ते हैं, बड़े भी यहाँ चल नहीं सकते। इसलिए हम डीसी साहब से गुजारिश करते हैं इसका हल जल्द निकालें। इस सिलसिले में म्युनिसिपल चेयरमैन पुलवामा बिलाल अहमद ने कहा कि आने वाले वक्त में हम इस डंपिंग साइट्स को दूसरी जगह मुंतकिल करने वाले हैं, जिसके लिए ज़मीन की निशानदही की जा चुकी है। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा बशीर हक चौधरी का आपके माध्यम से शुक्रगुजार हूँ और उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमें एक डंपिंग साइट अलॉट हो चुकी है और सॉलिड वेस्ट का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है 3.28 करोड़ रुपीस का, जिसमें हमारे शेड बनने वाले हैं, जिसमें हमारे साइंटिफिकली एक प्रोजेक्ट बनेगा जहाँ पे वर्मी कंपोस्ट बनेगी, जहाँ पे खाद बनेगी और जहाँ पे बायोगैस प्लांट भी एक लगेगा। वहीं अवामी हलकाओं ने गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि वो इस मसले को संजीदगी से लें और इस गंदगी को ख़त्म करने के लिए संजीदा इक़दाम उठाएं। बस सूरत दीगर अगर वादी कश्मीर खूबसूरत में मशहूर है, वो दिन दूर नहीं जब वादी में हर एक जगह गंदगी के सिवा कुछ नज़र नहीं आएगा। शिमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के सोपोर पिंजीपुरा इलाके में आज जम्मू कश्मीर पुलिस महकमे माल और एक्साइज डिपार्टमेंट की जानिब से पोस्ट का भूसा के ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाई गई और इस दौरान इसको तबाह किया गया। मीडिया के साथ बात करते हुए तहसीलदार पिंजीपुरा अमनदीप सिंह ने कहा कि हम लोगों से गुजारिश करते हैं कि इस पोस्ट भूसा को अपने बागों में ना उगाएं, क्योंकि ये जुर्म है और इसमें जो भी शख्स मुलविस होगा उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोलैबोरेशन विद एक्साइज डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और रेवेन्यू अथॉरिटीज़ ने आज एक ड्राइव की है। दिस इज़ अगेंस्ट बेसिकली पॉपी कल्टीवेशन जो हमारे यहाँ हो रही है इलीगल। हमने काफ़ी पॉपी जो है इलीगली यहाँ पे कल्टीवेट कर रहे थे लोग, उनको डिस्ट्रॉय भी की हुई है एंड नेसेसरी लीगल एक्शन विल फॉलो अगेंस्ट देम। प्लस मेरी आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट रहेगी, यही गुजारिश रहेगी लोगों से कि जो ये आप पॉपी कल्टीवेशन कर रहे हैं, वेदर दिस इज़ इंटेंशनल और अनइंटेंशनल, अगर आपके यहाँ पे है पॉपी तो काइंडली आप वो खुद डिस्ट्रॉय कर दीजिए। एल्स हम खुद यहाँ पे टीम्स हमने कॉन्स्टिट्यूट की है विद द हेल्प ऑफ दिस रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट एंड पुलिस डिपार्टमेंट। हमने टीम इसमें कॉन्स्टिट्यूट की हुई है एंड वी विल डिस्ट्रॉय ईच एंड एवरी पॉपी दैट इज बीइंग कल्टीवेटेड इन द एरिया। यही रहेगी कि वी ऑलरेडी कैरीड आउट आईसी एक्टिविटीज़ हमने कैरी आउट की हुई हैं। हमने इसमें पीआरआईज को भी इन्वॉल्व किया हुआ है और बाकी जो जिम्मेदारान शख्स हैं उनसे भी हमने मीटिंग्स ली हुई है। शिमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के सोपोर डाक बंगला में एडीसी सोपोर शब्बीर रैना की ज़ेर सदारत में ब्लॉक लेवल अफसरान के साथ एक मीटिंग का अहतमाम किया गया। इस मीटिंग में एडीसी सोपोर के हमरा तहसीलदार सोपोर के साथ साथ दीगर छोटे बड़े अफसरान ने शिरकत की। इस दौरान मीडिया के साथ बात करते हुए एडीसी सोपोर शब्बीर रैना ने बताया कि जो हमारे नौजवान बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, इनको फॉर्म 6 भरना है ताकि वो इलेक्टोरल लिस्ट में मुस्तकिल में आ सके। इसमें मेरे 2 तहसीलदार जिनको एडिशनल AERO की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, उनने भी अटेंड किया है। गर्ज यही था जो आज हमारा समरी रिवीजन है, ये 5 अप्रैल से शुरू होगा, 6 मई तक रहेगा। इसमें जितने भी जो लोग हमारे जवान, जो हमारे बच्चे 18 एज को होने को है बाई 1 अप्रैल, उनको हम एक्शन करा सकते हैं एंड उसके लिए उनको फॉर्म 6 फॉर्म भरना है। ऑनलाइन भी भर सकते हैं, आप लोग भी भर सकते हैं। तो वही हिदायत हमने अपने BLO साहब को दी है कि आपको जो टारगेट है, जो भी जेन्युइन आपके जिनको फॉर्म 6 भरा सकते हैं उनके अपने पकड़ने हैं, उनको ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में लेनी है। साथ ही साथ अगर किसी की करेक्शन करनी है या किसी को ईद उल फित्र के पेश नज़र अनंतनाग में एग्जीबिशन कम सर्कस का इनेकाद किया गया। हज़ारों बच्चों ने आज तीसरी ईद यानी ईद के तीसरे दिन भी खूब खेल कूद की। जनूबी ज़िले अनंतनाग के अशाजीपुरा इलाके में म्यूनसिपल कौंसिल अनंतनाग के सदर हिलाल अहमद शाह ने एग्जीबिशन कम सर्कस का इफ्तिताह किया। उनके हमरा कौंसिल के कई अराकीन के साथ साथ मुताल्लिक़ा महकमे के कई अफसरान मौजूद थे। इस मौके से म्यूनसिपल कौंसिल अनंतनाग के सदर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि असल में यहाँ के मकामी बच्चों को ऐसी सहूलियात बिल्कुल कलील तादाद में फ़राहम होती है।
جس کے چلتے انہوں نے ایک نجی کمپنی کو جنگلات منڈی کے علاقے میں ایسی سہولیات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اجازت دی ہے۔ صدر کا کہنا ہے کہ یہ پورے اننت ناگ کے لیے خوشی کی بات ہے کہ مذکورہ کمپنی نے یہاں لوگوں کے لیے ہر ایک چیز مہیا کر رکھی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اننت ناگ کے مختلف علاقوں میں پارکس کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، جنہیں بہت جلد پورا کر کے لوگوں کے نام وقف کیا جائے گا۔ اننت ناگ میں ہم نے ریسنٹلی انچی ڈورا میں ایک چلڈرن پارک کم اوپن ایئر جم کا اناگریٹ کیا۔ ہم نے دیکھا عید کے دن لوگ بچے کہاں آتے ہیں۔ اصل میں اوورآل اگر آپ دیکھیں گے بچوں کو یہاں پر اس چیز کی فیسلٹی بہت کم ملتی ہے، جو کہ ہم بھی بچپن میں تھے، ہم بھی چاہتے تھے کہ ہم ایسے جھولوں پر جائیں اور الگ الگ ویرائٹیز یہاں پر جس طریقے سے انہوں نے رکھی ہے تو یہ ایک خوشی کی بات ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر میں ضرور یہ کہنا چاہتا ہوں، جو ہمارے ڈپٹی کمشنر ہے ڈاکٹر بشارت قیوم صاحب، ان کا مشکور ہوں، جنہوں نے ہمیں میونسپلٹی کو 2 کنال 6 مرلہ زمین ہمیں زڑی پورہ کے پاس مین روڈ نائی بستی پہ ہمیں ہینڈ اوور کی ہے، اور میں آپ کے مادھیم سے اننت ناگ شہر کے لوگوں کو یہ آج خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ وہاں پر ایک امیوزمنٹ پارک بننے والی ہے، جس کے لیے آلریڈی ہم نے RNB کو لکھا ہوا ہے، DPR آئے گا۔ ہم کوشش کریں گے کہ جتنی بھی یہاں پر یہ ضلع اننت ناگ کے آکورا میں CRPF 96 بٹالین کی جانب سے مفت طبی کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس دوران CRPF کے طبی ماہرین نے علاقے کے سینکڑوں لوگوں کا علاج و معالجہ کیا اور ان میں مفت دوائیں بھی تقسیم کی۔ علاج کی سہولت حاصل کرنے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ مقامی لوگوں نے CRPF کی جانب سے اٹھائے گئے اس اقدام کی ستائش کرتے ہوئے CRPF کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ حکومت کی جانب سے ہمارے علاقے میں معقول طبی سہولیات فراہم نہیں کی گئی ہیں، تاہم وقتاً فوقتاً CRPF کی جانب سے ہمارے ان پسماندہ علاقوں میں ایسے میڈیکل کیمپ کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے اور علاج و معالجے کے ساتھ ساتھ مفت ادویات بھی دی جاتی ہیں، جو کہ ہمارے لیے بہت بہتر ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق CRPF کی جانب سے لوگوں کو طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے سال میں بہت سارے میڈیکل کیمپس کا اہتمام کیا جاتا ہے اور CRPF کے اہلکار ہمیشہ عوام کی مدد کرتے ہیں، جبکہ میڈیکل کیمپ کے ساتھ ساتھ کئی طرح کی مدد فراہم کی جاتی ہے، جس کے لیے لوگوں نے CRPF کا اس کام کی ستائش کی اور CRPF کا شکریہ ادا کیا۔ مطلب اگر کہیں سہولیت واتہ یہ رُتُے ات مجھ نا خوش کی مطلب بیٚیہِ اگر اتھواس ملان CRP سۭتۍ بڑ خوشی کران من کُنہِ ساتہٕ آ بالکل بالکل مطلب یہ آو CRP ہٕنٛدِ طرفہٕ مطلب گورمنٹٕکۍ طرفہٕ آو اَسہِ واریاہ لٹہِ سہولیت بالکل بالکل مطلب امہِ سۭتۍ وٲژ اَسہِ سہولیت۔ یہ یہیں پر ہمارے پاس میں بغل میں ہی ہے، تو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے ہیں۔ جب بھی کوئی مصیبت آئی، جیسے پچھلی بار باڑھ آئی تھی یا کوئی بھی گھٹنا گھٹ جاتی رات کو اچانک ہو جاتا کچھ بھی، تو ہمیں ان کے کنٹیکٹ نمبر سے ان کے افسروں کا ہم جب بھی فون کرتے تب ساتھ میں آ جاتے ہیں۔ تو جیسے انہوں نے مطلب اسی طرح ادھر فوج کی 34 RR کی جانب سے رام ہما کولگام کے ایک اسکول میں والی بال چیمپئن شپ کا انعقاد کیا گیا۔ اس ایونٹ میں کولگام کی 60 ٹیموں نے حصہ لیا۔ اس ٹورنامنٹ کی افتتاحی تقریب کے دوران رام ہما کے بہت سارے لوگوں نے شرکت کی اور علاقے کے نوجوانوں نے خاص طور سے ان کھیلوں میں شرکت کی اور نوجوانوں کو راغب کرنے کے لیے اس فٹ بال چیمپئن شپ کا انعقاد کیا گیا۔ لوگوں نے فوج کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ فوج لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہمیشہ حصہ لینے پیش رہتے ہیں۔ بالی ووڈ اداکارہ حنا خان اس وقت کشمیر میں ہیں اور جنت نظیر کے خوبصورت نظاروں سے نہ صرف خود لطف اندوز ہو رہی ہیں بلکہ اپنے مداحوں کو بھی اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اپڈیٹس کے ذریعے مطلع کر رہی ہیں۔ حنا خان کی جانب سے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر شیئر کی گئی تصاویر سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ بالی ووڈ اداکارہ نے عید الفطر بھی اپنے آبائی وطن کشمیر میں منائی ہے۔ انسٹاگرام پر حنا خان نے زبرون پہاڑیوں کے دامن میں واقع معروف ڈل جھیل پر کی گئی تصویر کشی شیئر کی ہیں۔ ان تصاویر میں ڈل جھیل کے کناروں اور شکارے میں جنت نظیر کے حسن سے محفوظ ہوتی دیکھی جا سکتی ہیں۔ تصاویر شیئر کرتے ہوئے حنا خان نے انسٹاگرام پر لکھا کہ کشمیر میں گزارا گیا یہ وقت کسی تھیراپی سے کم نہیں، میرا شکارہ اور ڈل جھیل ہمیشہ اس قدرتی حسن کی دل دادا ہے۔ اور آخر میں ایک نظر سرخیوں پر۔
पुंछ हमले के बाद हसास अजला में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त, जामा तलाशी और सीसीटीवी कैमरों के जरिए आने जाने वालों पर नजर। इंसदाद दहशतगर्दी मामले में NIA ने जम्मू कश्मीर हिजबुल मुजाहिदीन के सरबराह सैयद सलाहुद्दीन के बेटे शकील अहमद की प्रॉपर्टी अटैच की। और जम्मू कश्मीर के तहत जिले के 11 ब्लॉकों में जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद। प्रोग्राम में की वाइस चेयरमैन BDC पुलवामा सरवर हुसैन ने शिरकत। JKL डायरी में आज बस इतना ही, इजाजत दीजिए।